Everyone, welcome back. This is our sixth video or sixth lecture on highway engineering. In this video or in this lecture, we will discuss a type of sight distance, that is OSD, ISD, or first one is SSD, that is stopping sight distance. Previously, we done a number of topic, that is SSD, stopping sight distance, a part of OSD, overtaking sight distance, or you can say passing sight distance. Okay, this diagram shows a number of things which we had discussed in previous videos. Okay, there is two lane two way road. Okay, now D1 we already discussed, D2 we already discussed, space headway, the distance between the first one and second one, मतलब first vehicles and second vehicle, the distance between the front sides is equal to it's called space headway. Okay, but gap SSD is negligible. Okay, this is important things of OSD. The formula MAT OSD, that is 0.278 VVTR. What is VV? What is TR? We already discussed. TR reaction time, VV velocity of vehicle B. Okay, 0.278 is the conversion of meter seconds. Okay, kilometer meter seconds hour. This is the conversion of 0.278. Okay, plus 2s plus 0.278 VVT plus 0.278 VCT. What is VC? What is VV? What is VV? And where is VA? You already know about that. Okay, the velocity of vehicle B, velocity of vehicle C, velocity of vehicle C is velocity of vehicle A is equal to, okay, T reaction time, okay, time taken. The whole phenomena we already discussed in previously videos. This is the formula where we optimize optim the OSD over side distance, overtaking side distance. Okay, S, what is S? How we calculate the value of S? That is 0.2 VV plus 6. Okay, and how we can calculate the value of T? That is root under 4S upon A. What is A? Acceleration. S is already discussed. S is above. S is equal to 0.2 VV plus S6. Okay, some notes are important here. First one, vehicle A plus A and C both are considered as a fast moving vehicle, hence VA is equal to VC. I discussed what is VC, that is VA. It means VA is equal to VC. Okay, the velocity of vehicle A and the velocity of vehicle C is comparatively equal to each other. मतलब ए और सी की बात करें, व्हीकल ए और सी की बात करें, तो हमारा व्हीकल ए और व्हीकल सी एक ही रफ्तार में चल रहा होता है, एक ही वेलोसिटी में चल रही होती है, इसीलिए हम दोनों को इक्वल मान लेते हैं. राइट, जहाँ वी सी का है वहाँ वी ए का भी वैल्यू डाल सकते हो, जहाँ वी ए का है वहाँ वी सी का भी वैल्यू डाल सकते हो. बुक में या क्वेश्चंस में एक ही वैल्यू दी रहेगी, या तो वी सी या तो वी ए. ठीक है ना, तो आपको दोनों लेके चलना है. द वन एंड ओनली वन measurement or data is sufficient for to one the velocity of A and velocity of C. Okay, now if the speed of different vehicle are unknown, then it can be assumed as per IRC norms. अगर व्हीकल का स्पीड, ठीक है ना, अलग अलग हो तो क्या होता है, उसको हम IRC के एजम्पशन के द्वारा हम कर सकते हैं. वी ए इक्वल टू वी सी इक्वल टू डिजाइन स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर. क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब है कि वी ए वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ व्हीकल सी इज इक्वल टू डिजाइन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन kmph। क्या मतलब हो गया? मतलब ये है कुल मिला के कि कभी कभी क्वेश्चन में या तो वी ए दिया हुआ रहेगा, या तो वी सी दी रही होगी, या डिजाइन स्पीड दी हुई होगी, या एक डाटा दिया होगा किलोमीटर पर आवर में। तो आप चारों चीज़ को एक ही मान के चलेंगे, राइट? वॉट वी ए वी सी डिजाइन स्पीड किलोमीटर पर आवर वी आर similar to each other, are equal to each other. You can assume or take any of them. What is VV? How we calculate VV? Is equal to V minus 16 kilometer per hour. From there we calculate the value of VB. Okay. For any way traffic flow, किसी भी तरफ से ट्रैफिक जा रहा हो तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। व्हाट इज d1? व्हाट इज d2? डिस्टेंस वी ऑलरेडी टॉक अबाउट d1 एंड d2। ओके, एच पर IRC फॉर OSD क्या है भाई? एच कैपिटल और स्मॉल एच, हाइट ऑफ ड्राइवर साइड और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 1.2 मीटर 1.2 मीटर। IRC has not considered the effect of gradient for OSD calculation, although OSD is more on rising या falling gradient as compared to OSD on flat road. Okay, मतलब IRC has not considered, IRC तय नहीं करता the effect of gradient, मतलब आपका ज़मीन कितना ढलान है, आपका ज़मीन कितनी ऊंचे पे है, ये IRC को लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ऑल्दो OSD इज मोर ऑन राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट एज कंपेयर टू OSD ऑन फ्लैट रोड। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, कितने दूरी में हम ओवरटेक कर सकते हैं किसी दूसरे व्हीकल को जो हमारे सामने है। अगर OSD के लिए बात करें मिनिमम और मैक्सिमम, तो 3 इंटू OSD जितना निकला ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस उसका 3 गुना, मान लो 10 निकला तो 30 मीटर, मान लो 10 मीटर निकला मेरा OSD, तो 30 मीटर हमें चाहिए कम से कम 30 मीटर चाहिए। और साइड डिस्टेंस में हम लोगों को 6 घंटा 8 घंटा। ठीक है ना, ISD तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइड डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये क्या है? ISD इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD एंड इट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। या तो हम SSD प्रोवाइड करेंगे या तो हम OSD, बट कहीं कहीं क्या होता है, SSD OSD या ISD, मान लो SSD हम प्रोवाइड नहीं कराना है और OSD प्रोवाइड कराना है और OSD प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो हम क्या प्रोवाइड करा देंगे? SSD नहीं और ना ही OSD, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, एक है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, एक है वर्टिकल, ठीक है ना, और एक है उसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ रहे होंगे इसी टॉपिक के बीच में। ठीक है, अगर हम कर्व की बात करें नेक्स्ट वाले में, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है। हम इसमें एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो होगा मतलब मूवेबल वीडियो इन द सेंस, मतलब कि ऐसे PDF में नहीं होगा,
वो इससे पहले वाला जो वीडियो था उस तरह करके पेन और कॉपी और भी और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी वीडियो को, ठीक है ना। टेरेन क्लासिफिकेशन, अब टेरेन टेरेन क्या होता है, ठीक है ना, उतार चढ़ाव, ठीक है ना। अब एक ही जैसा ज़मीन पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना। कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं क्या है, नहर है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है। तो इस तरह का क्या होता है कि हर तरह का टेरेन आएगा, ठीक है ना, उस पूरे फिनोमेना को टेरेन बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में स्लोप कैसा आएगा, प्लेन अगर फ्लैट हो तो 0 to 10%, रोलिंग अगर हो तो 10 to 25, माउंटेनियस हो तो 25 से 60%, स्टीप हो तो 60 से ज़्यादा ले सकते हैं, राइट। कौन, क्रॉस स्लोप। डिजाइन स्पीड फॉर NH और SH, व्हाट इज NH, व्हाट इज SH, क्या है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए मैक्सिमम 100 kmph के लिए होता है। डिजाइन स्पीड फॉर एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेस हाईवे 120 किलोमीटर होता है पर आवर, 120 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नेशनल हाईवे के लिए 100, हाईवे के लिए सॉरी स्टेट हाईवे के लिए 100 और हमारा एक्सप्रेस हाईवे के लिए 120, राइट। सर्कुलर कर्व, कर्व भी ढेर सारा टाइप का होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्व के बारे में। एक है वर्टिकल, है ना, उसके बाद अभी हम सर्कुलर अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व इन अ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट induced a centrifugal force on a vehicle is radially outward direction। क्या मतलब, यहाँ देखो, हम बात कर रहे थे सुपर एलिवेशन का, याद है। पहले सुपर एलिवेशन हम लोग बहुत बात किए हैं, क्यों होता है सुपर एलिवेशन, रेलवे में भी होता है और हाईवे में भी होता है। नहीं पढ़े तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, राइट। अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व इन अ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इंड्यूस्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ व्हीकल इन अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, सही बात। इसीलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हमें क्या करना है, नहीं जाना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है उसको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना, विपरीतात्मक होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले भी बात किए फिर से चर्चा कर लेते हैं कि बाहरी वाली दिशा को या बाहरी वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं विद द ऑल नॉर्म्स ऑफ IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है ना, थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, ऊंचा प्रदान कर देते हैं, राइट। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल, व्हीकल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा सकता है, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल, लेटरल स्कीडिंग ऑफ व्हीकल। ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल मतलब, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल मतलब ओवर टर्निंग ऑफ अ व्हीकल और लेटरल स्कीडिंग ऑफ अ व्हीकल। ओवर टर्निंग मतलब कि मान लो, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लो कि फुल स्पीड में है गाड़ी, अपने रफ्तार में है, 70 80 90 जो भी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है, कोई भी व्हीकल, बड़ा व्हीकल है, मान लो ट्रक है, चल रहा है, वो टर्न आया, कौन सा टर्न आया, या आप बोल सकते हो अपनी भाषा में कर्व आया, ठीक है ना, कर्व आया, तो वो फिर भी अपनी स्पीड को कम नहीं किया, कौन, ट्रक का ड्राइवर। जैसे वो कम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक तरफ खींचेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वो, अब ट्रेन तो नहीं है जो डिरेल बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या, ओवर टर्निंग मतलब क्या हो जाएगा, वो एक तरफ झुक के गिर जाएगा, एक्सीडेंट में टेक प्लेस, ठीक है ना। और लेटरल स्कीडिंग मतलब, लेटरल स्कीडिंग मतलब फिसलना, लेटरली स्कीड करना, ठीक है ना। व्हाट इज स्लीप और व्हाट इज स्कीड, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्लीप एंड स्कीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज स्कीड, व्हाट इज स्लीप, इफ यू टॉक अबाउट द स्कीड, है ना, स्कीड अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो स्कीड में क्या करता है कि जो मोशन है व्हीकल के व्हील का
वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना, जीरो हो जाता है, फिर भी आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। और स्लिप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेकिन वो व्हीकल के व्हील का जो है वो मोशन में रहता है। स्किड उसको कहते हैं जब मोशन जीरो हो जाए व्हीकल का और फिर भी व्हीकल आगे बढ़े, व्हीकल के व्हील का जीरो हो जाए मोशन फिर भी आगे बढ़े, दैट इज स्किड। बट स्लिप कीचड़ वगैरह में ज़्यादा स्लिप करता है। कैसे कि गाड़ी का जो व्हील होता है वो एक जगह ही घूमने पे मजबूर हो जाता है, दैट इज स्लिप। ओके, here transition curve is provided to change the alignment from straight to circular। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताया गया है कि ये जो है चेंज करता है अलाइनमेंट को स्ट्रेट से सर्कुलर। मान लो सीधी दिशा में जा रहे हैं आप, फिर आपको कहीं टर्न लेना है, कर्व आया, ठीक है ना, सर्कुलर कर्व आया, तो क्या एकाएक सर्कुलर हो जाता है? बिल्कुल नहीं, धीरे 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 सर्कुलर की तरफ मोड़ता है। तो इस काम को करने वाला धीरे धीरे जो मोड़ेगा उसको सर्कुलर पे, स्ट्रेट से सर्कुलर, कौन करता है इस काम को करने वाला? इस काम को करने वाला ट्रांजिशन कर्व होता है, जो कि स्ट्रेट से सर्कुलर या सर्कुलर से स्ट्रेट कर रहा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन कर्व हैज अ रेडियस इक्वल टू इन्फिनाइट when it is meeting to a straight road and gradually changes to designated radius when it is meeting to the circular curve। मतलब ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसकी जो रेडियस होता है इक्वल टू इन्फिनाइट व्हेन इट इज़ मीटिंग टू ए स्ट्रेट रोड। उसका जो रेडियस होता है वो इन्फिनाइट पे पहुंच जाता है। कब? जब इट इज़ मीटिंग टू द स्ट्रेट रोड एंड gradually changes to the designated radius when it is meeting to the circular curve। जब सर्कुलर कर्व पे मुड़ जाता है तब फिर रेडियस हो जाता है, राइट। इस तरह का देखो स्ट्रेट रोड है, ये सर्कुलर है, जो स्लैश है वो टीसी, दैट इज ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पी फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फॉर फॉलोइंग पर्पस: टू ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन बिटवीन स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व। सर्कुलर और स्ट्रेट कर्व के बीच में धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आने को मजबूर कर रहा होता है या आने की अनुमति दे रहा होता है। टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, सुपर एलिवेशन को भी धीरे धीरे पता चला, एकाएक नहीं। टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअल, अलग से चौड़ीकरण हो रहा है, इसके वजह से कर्व जहाँ पड़ेगा वहाँ चौड़ा रहेगा रोड। टू अवॉइड सडन जर्क, सडन जर्क को भी अवॉइड करता है कौन? ट्रांजिशन कर्व। IRC suggests to use a spiral nature transition curve for horizontal alignment and cubic parabola transition curve for vertical alignment। ये सब तो टाइप्स है जो यूज होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन, और अटेंडेंस प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे बनाइए। थैंक यू।